Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all are attending your online classes and also watching the videos which are daily uploaded for you. Children, recently I have started chapter 1 of your EVS book. The name of your EVS book is Think Green. And chapter 1 of this book is My Body, which I had already introduced to you. In today's video, I will be explaining this chapter. The continuation will be there of the explanation part of the chapter. Children, this chapter is about our body, as the name suggests. In this chapter, you are going to learn about different body parts, the external body parts as well as internal body parts, their functions. Apart from external and internal organs, you will be studying about your sense organs also. So far, I have explained to you about external organs and some of internal organs. I have explained. Let's recap what I have explained to you in the previous videos. उसका एक recap कर लेते हैं. Children, our body. We all have got body. हम सबके पास body है. A visible body we all have. And we have many body parts also. Our body is like a machine, like any other machine. एक fan भी होता है हमारे घर में, तो वो भी एक simple machine है. फैन में जो उसके 3 विंग्स होते हैं, उसमें बेयरिंग होता है, उसमें नट बोल्ट्स होते हैं. दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द फैन विच हेल्प द फैन टू मूव एंड दे हेल्प द फैन टू फंक्शन प्रॉपरली. Similarly, our body is also like a machine and the different parts of our body help our body to function properly. जिस तरह से मशीन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उस मशीन को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो हमें हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. जैसे अब कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो विजिबल हैं, जो हम देख सकते हैं, दैट वी कैन सी. देयर आर मेनी बॉडी पार्ट्स. There are many parts of our body that we can see, and those parts are called external body parts or external organs. Okay? Like eyes, nose, lips, ears, head, forehead, hand, fingers, thumb, elbow, shoulder, chest, belly, thigh, knee, ankle, heel, foot, toes, many body parts. And all that body parts we can see, वो हम देख सकते हैं. That is why they are called external organs. They are outside of our body. The external organs are outside the body and we can see them. और ये जो external organs हैं, they help us in doing various activities. जब आप सोकर उठते हो बेड से और you stand on floor, आप उठ के खड़े होते हो, तो कौन सा बॉडी पार्ट आपको हेल्प करता है? योर लेग्स. यस, आपके जो लेग हैं वो हेल्प करते हैं आपको खड़े होने में. लेग इज योर बॉडी पार्ट. जैसी मम्मी ने आवाज दी, आप ऐसे टर्न करके देखते हो. विच बॉडी पार्ट हेल्प यू टू टर्न? योर नेक. यस. Whatever I am saying, you are listening that. Which body part is helping you? Ears. You are able to see the videos. You are able to see various things around you. Which body part is helping you? Eyes. You write whatever teacher says you to write. You write with the help of your hand. Your hand helps you in writing. You eat using your hand. Your mouth helps in eating food. Your teeth helps in chewing food. So all the body parts, they perform their function and they help the body
to do their work properly. All these body parts help our body to function properly. Now, apart from these external organs, there are certain parts which are inside our body. There are certain parts which are inside our body that we cannot see. Such body parts are called internal organs. ऐसे बॉडी पार्ट्स को हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जिसको कि हम देख नहीं पाते, बट दे आर देयर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. और जो मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या है? ब्रेन, stomach, heart, small letters in heart, lungs, liver, kidney. There are other internal organs also, but we will not study about them. बस हम सिर्फ बेसिक जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे. ठीक है. ब्रेन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है विच इज इनसाइड आवर हेड या इनसाइड आवर स्कल. हमारे स्कल के अंदर है और इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स अस इन थिंकिंग, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग. और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका है दैट इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है ब्रेन. ठीक है. तो ये हमने कर लिया था. स्टमक का भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द चेस्ट कैविटी और ये बेली के अंदर होता है. जो बाहर होता है पेट उसको हम बेली बोलते हैं और बेली के जो अंदर होता है दैट इज कॉल्ड स्टमक. एंड द शेप ऑफ स्टमक इज लाइक अ इंग्लिश अल्फाबेट का जो जे होता है उससे थोड़ा सा ये रिजेंबल करता है. स्टमक का जो शेप होता है इट इज समथिंग लाइक जे. फंक्शन ऑफ स्टमक इज इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. फूड को डाइजेस्ट करने में स्टमक हेल्प करता है. ठीक है. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. Whatever we eat, it goes from food pipe to our stomach, and there the food gets digested in the stomach with the help of other juices and enzymes. उनकी मदद से स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. It's like food bag. Then coming to heart, ये भी मैं आपको स्टमक को है heart. This also I had explained in the previous video. Heart is located in our chest. हमारे chest में ये located होता है. It is tilted toward left. थोड़ा सा left side को होता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि heart left में है, left में है. It is not exactly in the left side, but it is tilted toward left. तो हम उसको left बोलते हैं. और जो मेन फंक्शन है ब्लड हमारे हार्ट का वो है इट पंप्स ब्लड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो हार्ट है इट पंप्स ब्लड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वी कैन फील आवर हार्ट बीट. इफ यू पुट आवर हैंड ऑन आवर चेस्ट, अगर हम अपने चेस्ट पे अपना हाथ रखें तो हम अपने हार्ट बीट को फील कर सकते हैं. वी कैन नॉट हियर बट वी कैन फील. द साउंड ऑफ दिस हार्ट इज लब डब लब डब लब डब. एंड जब आप स्टेथोस्कोप लगाकर अगर आप चेक करोगे तो यू कैन इवन हियर योर हार्ट बीट. एंड दिस हार्ट कंटिन्यूसली पंप्स ब्लड थ्रू आउट आवर लाइफ. जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक ये कंटिन्यूसली ब्लड पंप करता रहता है.
विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ये कंटिन्यूसली हार्ट जो है हमारा ब्लड पंप करता रहता है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट. नेक्स्ट इज लंग्स. दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में लंग्स के बारे में भी आपको मैंने बताया था. वी हैव टू लंग्स. पेयर्स में होता है लंग्स. इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द चेस्ट. हमारे चेस्ट में लोकेटेड है ये, और ये एक एयर फिल्ड बैग की तरह है. इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग. ये हमें सांस लेने में हेल्प करता है. दिस लंग्स हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग. जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको ये लेता है. इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. जब हम ऐसे ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको ये लेता है. एंड देन इट रिलीजेस, इट लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड. और ये ऑक्सीजन फिर लंग्स में जाने के बाद इट गोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द body. So main function of lungs is that it helps in breathing. Then comes liver. हम बाकी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अब हम बात करेंगे लिवर की. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिवर. थोड़ा सा लिवर के बारे में हम बात करते हैं. लिवर जो है ये हमारी बॉडी में कहाँ है? जो हमारा एब्डोमेन होता है, जो बली का जो लोअर पोर्शन है, जो स्टमक के नीचे का पोर्शन है, एब्डोमेन जिसको बोलते हैं. तो जस्ट एब्डोमेन के ये पास होता है जो हमारा रिब केज है. रिब केज मतलब जो हड्डियां हैं हमारे, जो स्केलेटन, जो अंदर बॉडी के अंदर जो जहाँ पर आप टच करोगे तो आपको बोन्स फील होंगे. रिब केज उसको बोलते हैं, उसके पास है. ठीक है. एंड दिस लिवर इज वेरी इम्पॉर्टेंट. लिवर जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है. लिवर इट इज एन इम्पॉर्टेंट, इट इज एन काफी इम्पॉर्टेंट जो है इंटरनल ऑर्गन है. ये कैसे इम्पॉर्टेंट है? ये सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो लिवर होता है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है. यस, इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें ये सबसे बड़ा होता है. Yes, it is the largest solid organ in our body. It is the largest solid organ. It is the largest solid internal organ. It is the largest solid internal organ in our body. लार्जेस्ट, हमारी बॉडी का ये एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन है. और जब आप बड़े हो जाओगे, व्हेन विल ग्रो अप, इट विल बी ऑफ द साइज ऑफ फुटबॉल. एक फुटबॉल के साइज तक का हो सकता है. जब आप बड़े हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे, तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा. लिवर का साइज बड़ा हो जाएगा. अब फंक्शन क्या है? लिवर करता क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है दैट इट हेल्प्स अस बाय टेकिंग टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर ब्लड. इट हेल्प्स टेकिंग आउट टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर ब्लड. नाउ टॉक्सिन्स क्या होते हैं? जो कुछ ऐसा अनवांटेड थिंग्स होते हैं हमारे ब्लड में, उसको ये आउट करने में हेल्प करता है. ठीक है. इट हेल्प्स अस बाय टेकिंग टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर ब्लड. अब ब्लड में टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं?
आते हैं टॉक्सिन्स? समटाइम दीज टॉक्सिन्स कम्स ड्यूरिंग द रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी की वजह से ही टॉक्सिन्स आए. समटाइम्स द जो बॉडी है इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स एज पार्ट ऑफ नॉर्मल फंक्शन. ओके, जैसे हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है उसी के टाइम कभी कभी टॉक्सिन्स ब्लड में आ जाते हैं और जो लिवर है वो इस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, ब्लड से बाहर निकालने में हेल्प करता है. एक तो ये फंक्शन है इसका. दूसरा फंक्शन ये है कि जो गुड स्टफ है जो हम खाते हैं उसका जो गुड स्टफ है उसको ये प्रोसेस करता है ताकि पूरी बॉडी उसको यूज कर सके. ठीक है, पहला क्या करता है कि इट हेल्प्स अस बाय टेकिंग आउट टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर ब्लड. हमारे ब्लड में से टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालने में हेल्प करता है. उसके अलावा जो गुड स्टफ से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको वो प्रोसेस करता है बॉडी में ताकि पूरा बॉडी उसको यूज़ कर सके. ठीक है, तो कितना हेल्पफुल है. इसलिए हमें अपने लिवर की केयर करनी चाहिए. कैसे केयर कर सकते हैं हम अपने लिवर की? लीवर को सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है? जब कोई पर्सन ओवरवेट होता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाता है, ओबेसिटी. या फिर कुछ लोग ना अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं मतलब जब बैड ड्रिंक जिसको बोलते हैं अल्कोहल, जब लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो वो लिवर को डैमेज करता है मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है. तो अल्कोहल पीने वाले जो लोग होते हैं उनका लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है. इसलिए अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए. दूसरा, ओवरवेट होने से अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तभी लिवर के लिए वो अच्छा नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. अच्छा खाना है, डू एक्सरसाइज, ईट हेल्दी फूड एंड योर लिवर विल बी हैप्पी. आपका लिवर खुश हो जाएगा. अगर आप हेल्दी खाना खाओगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर करोगे तो योर लिवर विल बी हैप्पी. ठीक है, तो ये हो गया लिवर के बारे में. नेक्स्ट है आपका किडनी. किडनी जो है दैट इज ऑल्सो इन पेयर. जो किडनी है वो भी क्या है, पेयर में होती है. ठीक है, 2 किडनी होती है हमारी बॉडी में. और किडनी का क्या फंक्शन है? आपने देखा है राजमा, देखा है राजमा, मम्मी घर में राजमा बनाती है ना, तो किडनी का शेप भी होता है ना राजमा की तरह होता है, ऐसा समथिंग लाइक दिस. इस तरह से होता है हमारी किडनी का शेप. इट लुक्स लाइक राजमा. और इसका फंक्शन क्या होता है? दिस किडनी प्यूरिफाइज ब्लड, ब्लड को साफ करने में हेल्प करती है. सो किडनी क्या करती है? इट क्लीन्स अप आवर ब्लड. ओके, किडनी क्लीन्स अप आवर ब्लड and throws out of our body in the form of urine. It cleans up the blood. हमारे ब्लड को ये साफ करती है और जो भी वेस्ट होता है हमारे ब्लड में उसको ये यूरिन के थ्रू निकाल देती है. यूरिन के थ्रू जो वेस्ट है वो निकल जाता है. तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इट प्यूरिफाइज ब्लड, इट क्लीन्स ब्लड. ठीक है,
हमारी कितनी किडनी है? वी हैव 2 किडनीज. कितनी किडनीज है? वी हैव 2 किडनीज. हमारी बॉडी में 2 किडनीज होते हैं और ये हेल्प करते हैं ब्लड को प्योरीफाई करने में. ठीक है, तो ये हो गया किडनी के बारे में. हमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है आपके लेवल में. अब बात करेंगे कुछ बोन्स और मसल्स की, क्योंकि दे आर ऑल्सो आर इंटरनल पार्ट. ऐसे बाहर से तो हमें बोन्स दिखते नहीं है, वी कैन फील. जब आप टच करते हो तो आपको टाइट टाइट जो हार्ड फील होता है, दैट इज बोन. जब आप कहीं आप ऐसे टच करोगे अपने बॉडी को, तो जहां भी आपको हार्ड फील हो रहा है, दैट इज बोन. और जो सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट है जो स्किन के नीचे, दैट इज मसल्स. ठीक है, तो ये बोन्स और मसल्स स्किन के अंदर है एंड दे आर सॉर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन. तो इसके बारे में अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. किसके बारे में? बोन्स एंड मसल्स के बारे में. आपको पता है हमारी बॉडी में, एक एडल्ट की बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स. यस. एक कोई भी एडल्ट जो होता है, जो बड़ा इंसान होता है, ग्रोन अप होता है, उसकी बॉडी में देयर आर 206 बोन्स इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट. एक एडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं. ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. जो हमारी स्किन है, उसके अंदर है हमारी पूरी बॉडी का स्केलेटन. स्केलेटन मतलब पूरी बॉडी का जो ढांचा है. वी हैव स्केलेटन अंडर आवर स्किन. ठीक है, अंडर आवर स्किन वी हैव स्केलेटन. स्केलेटन है वो क्या है? बोन्स से पूरा बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ बोन्स. इट इज वो स्केलेटन किससे बना है? बोन्स से बना हुआ है. ठीक. चिल्ड्रन, so under our skin we have skeleton and it is made up of bones. Our skeleton is made up of bones. जो हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? बोन्स से बना हुआ है. ठीक है, एंड दिस स्केलेटन, जो हमारी जो स्केलेटन है जो बोन्स से बना हुआ है, इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी and it also protects the internal parts. The skeleton gives shape to our body. जो हमारी बॉडी का शेप है वो किससे आया है? वो बोन्स की वजह से आया है. ओके, जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी को शेप देते हैं. और क्या करते हैं? ये जो स्केलेटन है वो और क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल पार्ट्स. इट protects the
हमारे इंटरनल पार्ट्स है उनको ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि लंग्स है, हमारा हार्ट है, ब्रेन है। इससे बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं। अगर इसको थोड़ा भी डैमेज हो गया तो हम हो सकता है कि हमें कोई सीरियस इंजरी हो जाए या हमारे लाइफ को भी खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी तरह का डैमेज हो जाए तो ये जो स्केलेटन है वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको ये प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहते हैं, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, या हमारा जो ब्रेन है जो स्कल के अंदर है, क्योंकि ब्रेन में जरा से भी चोट लग जाएगी तो इससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है, हमारी बॉडी पर अफेक्ट हो सकता है। तो ये जो स्केलेटन है वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया सच एज, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सारे क्या है हमारे इंटरनल ऑर्गन है और इन्हीं को ये प्रोटेक्ट करता है। बोन्स जो हैं, जहां पर भी हमारे दो बोन्स जुड़ते हैं, जहां से हम फोल्ड करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जॉइंट। जहां पे दो बोन्स कनेक्ट होते हैं दे आर कॉल्ड जॉइंट, उसको हम कहते हैं जॉइंट। मैं इरेज कर दूं पहले। जहां भी बोन्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, द प्लेस where bones connect, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड जॉइंट, उसको हम बोलते हैं जॉइंट। जैसे कि ये अब यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, जॉइंट है। नी है, नी के पास से हम पैर को फोल्ड करते हैं, वो क्या है, वहां भी जॉइंट है। ये हमारे शोल्डर के पास से क्या है, जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट्स जो होते हैं मतलब वहां पर तो जो बोन्स के पार्ट हैं वो वहां पर कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, और बोन से क्या होता है, एक तो शेप देते हैं हमारी बॉडी को, दूसरा दे हेल्प अस इन मूवमेंट। हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है। अगर सिर्फ मसल्स होते, सिर्फ स्किन होता तो हम खड़े भी नहीं हो पाते, है ना। हमारी बॉडी ऐसे लूज होती ना, तो एक बॉडी को शेप मिल रही है और हम जो मूव कर पा रहे हैं वो बोन्स और मसल्स की वजह से। ये मसल्स के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे, अभी तो हम बोन्स की बात कर रहे हैं ना। तो बोन्स की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट भी होता है, भले वो जॉइंट है, जो बोन्स है वो ज्वाइन हो रहे हैं कहीं कहीं पर, तो उससे हम फोल्ड कर पाते हैं जॉइंट्स की वजह से, और हम जो मूव कर पा रहे हैं, जो हम खड़े हो पा रहे हैं, वो भी बोन्स की वजह से। अगर बोन्स नहीं होता तो हम ऐसे लूज होके ऐसे एक जैसे नहीं, कोई कपड़ा ढीला सा कपड़ा उसको छोड़ दो तो कैसे गिर जाता है, तो ऐसे हमारी बॉडी हो जाती। तो ये हमारे मूवमेंट में भी बोन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो फ्रेम है वो बोन से बना है और मसल से बना है। हमारी बॉडी जो एडल्ट बॉडी है उसमें कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स एक एडल्ट की बॉडी में होते हैं। जो बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके ज्यादा बोन्स होते हैं, उनके 300 बोन्स होते हैं। जो बेबीज होते हैं उनके 300 बोन्स होते हैं, जो एडल्ट होते हैं उनमें 206 बोन्स होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, फिर वो बोन्स जॉइंट होते जाते हैं, तो नंबर ऑफ बोन्स फिर कम हो जाते हैं, बेबी के बोन्स ज्यादा होते हैं। मसल्स कितने होते हैं, मसल्स के बाद में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में मसल्स कितने होते हैं। अभी तो हमने बोन्स की बात कर ली। बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, लिफ्ट करते हैं, रन करते हैं, बच्चे जो है जंप करते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो अगर स्ट्रांग बोन्स नहीं होंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा।
इसीलिए बोलते हैं ना कि मिल्क पियो, बच्चों को कहा जाता है दूध पियो, कैल्शियम की चीजें लो फ्रॉम, ताकि आपके बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग हों। स्ट्रांग बोन्स अगर रहेंगे तो फिर आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, कभी आप गिरोगे तो आपको फिर चोट भी नहीं लगेगी। इसीलिए बच्चों को स्पेशली कहा जाता है कि दूध पीने के लिए। दूध में बहुत कैल्शियम होता है, कैल्शियम की चीजें जब आप लोगे तो आपके बोन्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको बताऊंगी मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको बोन्स के बारे में बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे अपने बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस, सेंस ऑर्गन्स, ये सब हम पढ़ेंगे बट अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।